बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो कोर्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है जी पाकिस्तान स्टडीज। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल कोर्स, फैसिनेटिंग कोर्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस कोर्स। वेरी सिंपल, पाकिस्तान स्टडीज मीन इस सब्जेक्ट में वी विल बी स्टडिंग अबाउट पाकिस्तान। द स्टडी वी विल बी स्टडिंग अबाउट पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे, अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द land of Pakistan, about the river of Pakistan, about the political parties of Pakistan, about different leaders of Pakistan like Zulfikar Ali Bhutto, like Ayub Khan, Ziaul Haq, Benazir Bhutto. Okay, we will be discussing about the relationship of Pakistan with other countries. Mean in short हम ये कह सकते हैं कि each and everything which is directly or indirectly related with the state Pakistan, we will be studying in this course. इस कोर्स को हमने दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम देखेंगे प्री पाकिस्तान पीरियड, मीन बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देयर वाज अ पीरियड व्हेन a struggle was launched by different social and political leaders like Sir Sayyid Ahmad Khan, Maulana Muhammad Ali, Johar, Illama Iqbal, Qaid-e-Azam, Sir Aga Khan. There was a struggle for the achievement of an independent country, Pakistan. Keep one thing in your mind that Pakistan is not a result of an accident. It is a result of a continuous struggle which was started in the year of 1857. So today I will be telling you about some of the important development which took place in these years. Then in the next portion, we will be discussing about different topics after the establishment of Pakistan. Mean when Pakistan was established, what were the early problems of Pakistan, what is the geography of Pakistan, what is the governmental structure of Pakistan, and what are the nature of relations of Pakistan with other countries. So let's jump to the first part, that is this pre-Pakistan period. Look at this. We will start from this 1857. I think most of you are aware of this year 1857. What happened in this year 1857? Anybody can tell what happened in First World War. First World War? Yes. Anybody else? Okay, without wasting your time, I want to share my opinion and listen carefully. There's a difference between war, between World War, Civil War, War of Independence, okay, Cold War. In 1857, there was a war. We call it War of Independence. War of Independence. उर्दू में हम इसे कहते हैं उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है जंगे आजादी। एक्चुअली इन द ईयर ऑफ 1857 देयर वाज नो वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1914 to 1918. In 1857 there was a war between Indian and the British government. Okay, there was British government which was ruling in India. So the Indians participated in a war. We call it war for independence, आजादी के लिए जंग. Got it? Got it? Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब जब वार होती है 1857 में, war for independence, what was the result of the war? The result was in the favor of the British government. Why? Because they were well prepared of there was a union, they were using modern weapons. Okay,
So the Indians, mean Hindu, Muslim, and other communities, the Indians had to face the face of the defeat. जो लोकल लोग थे उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है ना अब जो रोल आ जाता है कि जो हिंदूज थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूछा कि जी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, अब जाहिर सी बात है जो शख्स जंग को जीता है वो फिर जो डिफीटर्स होते हैं उन्हें पनिशमेंट भी देता है। तो लिहाजा अब उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो पॉलिसीज जो हैं वर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पेशली टुवर्ड्स द मुस्लिम, बिकॉज द मुस्लिम्स वर डिक्लेयर्ड एज द मेन पार्टिसिपेंट्स। अब जंग के बाद रोल शुरू होता है सर सैयद अहमद खान का। 1858 was a time when Sir Syed Ahmad Khan, you know very well about him. You have studied about him in even ninth, 10th and second year class about the services of Sir Syed Ahmad Khan. 1858 में सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी थी, काजीज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। उर्दू में इसे हम कहते हैं रसाला असबाबे बगावते हिंद। सुना है आप लोगों ने? रसाला असबाबे बगावते हिंद, काजीज ऑफ इंडियन revolt, 1858. In a reaction, Sir Syed Ahmad Khan, in the very next year, 1858, Sir Syed Ahmad Khan wrote a book with the title Qazis of Indian Revolt. And in his book, he made the concept of the British government clear that yes, there was a war. But main thing is this, what were the causes of the war? And he proved that there was a war because of your wrong policies. You did not allow the Indians to participate in the government. You did not appreciate them to enjoy their social, political, and economic rights. So this was a natural outcome from the Indians. तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया, ये रियलाइज करवाया कि अगर जो वार हुई आपकी वजह से हुई, आपने इंडियंस को वो जो राइट्स थे वो नहीं दिए। देन एक तरफ तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो रियलाइज करवाया, दूसरी तरफ उन्होंने जो लोकल लोग थे, इंडियंस जो थे, उनको कहा कि आप लोग कह रहे हैं हमें राइट्स दें, हमें पॉलिटिकल राइट्स दें, हमें एजुकेशनल राइट्स दें, मीन हमें जॉब्स दें, हमें आर्मी में जॉब्स दें, ठीक है? और फिर हमें जो है आप जो है ना वो एक इक्वल सिटीजन का जो स्टेटस दें, हर किस्म के जो है ना हमें जो फैसिलिटीज हैं वो मिलनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने कहा आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, लीगल हैं, बट बेगर्स आर नॉट चूजर। आपको सबसे पहले उस काबिल बनाना होगा। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, इंडियंस को कहा कि एजुकेशन को हासिल करें, क्योंकि वो समझते थे कि इफ यू वांट टू स्पॉइल अ नेशन, जस्ट स्पॉइल इट्स एजुकेशन। सो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द लोकल इंडियंस, व्हाट ही डिड, यू हैव स्टडीड इन 1859 मुरादाबाद में उन्होंने स्कूल बनाया, 1862 गाजीपुर में स्कूल बनाया, 1863 उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, 1866 उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट बनाया, 1867 में उन्होंने क्या किया जी, 1867 में क्या किया उन्होंने, उर्दू हिंदी तनाजा के बारे में सुना आप लोगों ने? जी सर। उर्दू हिंदी तनाजा। अब ये देखें जहां पर एक यू टर्न आता है, वैसे हम इमरान खान के बारे में ज्यादातर ये आपने सुना होगा कि वो यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। एक बात याद रखें, यू टर्न इज नॉट a bad turn if your U-turn is for a right path। होता है ना बात को, तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हम कहते हैं यू टर्न लेके सीधे हो जाओ। यहाँ सर सैयद अहमद खान ने यू टर्न लिया। क्यों यू टर्न लिया? इसलिए यू टर्न लिया क्योंकि 1858 से लेकर 1866 तक सर सैयद अहमद खान वाज स्ट्रगलिंग फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम, एंड ही वाज असिस्टिंग बोथ हिंदू एंड द मुस्लिम। और उनका एक फर्म बिलीव था कि ये दोनों जो है उनको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि अपने जो डिमांड्स हैं वो उसको जो है ना वो फुलफिल करवा सके। और सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हामी थे। मैं एक कोटेशन उनकी आपके लोगों से शेयर करता जाऊं। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि जो हिंदुस्तान है, इंडिया, हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है
और हिंदू और मुसलमान उस दुल्हन की दो आंखों की तरह है। अगर दुल्हन की एक आंख भी खराब हो जाए तो जिस तरह उसकी खूबसूरती नहीं रहती, इस तरह अगर हिंदू या मुसलमान इनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर हिंदुस्तान की भी खूबसूरती इन दोनों से है, मुसलमानों से और हिंदुओं से। मीन उनकी यूनिटी की जो है ना वो बात करते थे। मगर 1867 में ही टूक अ यू टर्न। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। जब हिंदुओं ने क्लेम किया कि हिंदी को उर्दू से रिप्लेस कर दिया जाए। नो, दिस वाज अ टाइम व्हेन सर सैयद अहमद खान टूक अ यू टर्न। नो, ही रियलाइज्ड that the Hindus are not the supporter, the friends of the Muslim, and they will never work for the इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। इसलिए उन्होंने जो है ना अब इस ईयर में यू टर्न लिया। 1869 में वो इंग्लैंड में गए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ऑब्जर्व किया कि वहाँ के लोग क्यों कामयाब हैं, वहाँ की जो एजुकेशन है वो क्यों इफेक्टिव है। लिहाजा 1869 में ही पेड हिज विजिट टू इंग्लैंड एंड ऑब्जर्व द एजुकेशन सिस्टम देयर। 1875 में क्या हुआ था बता सकते हैं आप लोग? एक स्कूल बना था बड़ा मॉडर्न सा। ठीक है जी, एमए स्कूल। सर जी बोले। सर कह रहा था नहीं था पता स्कूल का, बता दें आप। ये लिख तो दिया मैंने, एमए स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल 1875 में उन्होंने बनाया। 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। अब ये जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1885। 1885 में क्या होता है? 1885 में इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश होती है जिसका नाम था ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ पॉलिटिकल पार्टी and it was the first time in the history of India when in the year of 1885 a political party was established, mean the Indians were allowed to enjoy their political right। तो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो ये किसने बनाई? ठीक है, तो इसको बनाने में जो रोल प्ले किया वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, बरतानवी नजाद, उसका नाम था ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवन ह्यूम। उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को बनाया। अब जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाई तो व्हाट वाज द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान ने जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी जब ये बनी तो मुसलमानों को अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि उनको डिस्करेज किया और कहा कि यू आर नॉट सपोज टू बिकम पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल party. No, you were not supposed to. He advised Muslim. Why? Because he was a foresighter. He realized that All Indian National Congress is a Hindu-dominated political party, and if the Muslim will join that political party, the Muslim will lose their separate identity, their culture, their custom, their norm, their usages, main rawayat जो होती हैं, their traditions, their language, even their dressing, their eating, their beliefs, their drinking. ठीक है, everything is different. They belong to different caste and creed. Their complete domestic lifestyle is different. So when they will join the same political party, they will lose their identity. So they advised Muslim not to become part of that political party. But most of the Muslim leaders joined along with Qaid Azam. He was part of the All Indian National Congress as well. Maulana Abul Kalam Azad was the member of All Indian National Congress. But as long as the advice of Sir Sayyid Ahmad Khan is concerned, he never advised Muslim to become part of that political party. No to counter this political party, in the very next year, in the year of 1886, look at the timing, he established a conference which is known as Mohammedan Educational Conference। सुना होगा आपने नाम, सुना है? थोड़ा सा बोला करें। मोहम्मदन नहीं एजुकेशन सर। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान की तलीमी खिदमात पढ़ते हुए आप लोगों ने सुना होगा। 1886 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस बनाई एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मे बी द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, बट इट वाज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एज वेल।
mean the political problems of the Muslims were being discussed on that particular platform. And fortunately, this is the same month, March, when on 23rd March 1940, it was the annual session of the Mohammedan Educational Conference, when a political party, in 1906, sorry, I will be telling you in the year of 1906, when it was the annual session of Mohammedan Education Conference, when a political party was formed with the name of All Indian National Congress. तो ये उन्होंने काउंटर करने के लिए ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बनाई. देन 1905 एक और जो है ना वो ईयर आता है इंपॉर्टेंट सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में. 1905 में क्या हुआ, मुझे आप ये बताएं कि जब ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को क्या एडवाइस किया था. 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को क्या एडवाइस किया था. ये देखिए सर एडवाइस दी थी कि ना ज्वाइन करे ये पार्टी, क्योंकि फिर मुसलमानों के हकूक कुछ चीज हासिल नहीं कर सकेंगे, उनका कल्चर अलग है, हर चीज अलग है, तो अपनी पहचान खो देंगे अगर वो जी. ये पार्टी और ज्वाइन करेंगे. हिंदू कभी भी मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करेंगे. ऑल इंडियन नेशनल कभी भी मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी. ऐसे ही है. यस सर. जी, ये बात प्रूव हो गई. सर सैयद अहमद खान ने जो कहा, आई टोल्ड यू दैट सर सैयद अहमद खान वाज अ फॉरसाइटर, दूरंदेश थे. हिज hypothesis proved later on in the year of 1905. What happened in the year of 1905? तकसीम बंगाल के बारे में सुना आप लोगों ने? यस सर. तकसीम बंगाल होता है. Bengal was a very big province, and in the year of 1905, the lord of that time, mean we are talking about this Bengal 1905 important year. क्या हुआ 1905 में बंगाल को, Bengal was a big province and it was decided by the lord of that time, Lord Curzon, to divide Bengal into two, East and West Bengal. अब जब बंगाल तकसीम हुआ तो the Muslims got accidental benefit. मुसलमानों को फायदा हुआ. Earlier they were the manufacturer, but traders were the Hindus. Now after the division of Bengal, the Muslims started to export their own commodities in international market, and they become wealthy. So what happened? What was the reaction of All Indian National Congress? All Indian National Congress and Hindus opposed the division of Bengal. Getting my point? Oppose division of Bengal. Who? All Indian National Congress. I already told you that Sir Syed Ahmad Khan told Muslim in the year of 1885 that All Indian National Congress is a Hindu-dominated party and it will never support Muslim. It will never work for the interest of the Muslims. Same thing happened in the year of 1905 when Bengal was decided to divide into East and West Bengal. What was the reaction of the All Indian National Congress? It opposed the division of Bengal. It said no, this is a division of our mother, क्योंकि ये हिंदुओं का बिलीफ था ना कि जमीन हमारी माँ है. तो they decided to divide Bengal. Okay. तो अब मुसलमानों ने रियलाइज किया कि भाई देखें सर सैयद ने तो ठीक कहा था, ये तो इस चीज को अपोज कर रहे हैं और हमने क्लेम भी नहीं किया. वी डिड नॉट क्लेम, इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय द लॉर्ड कर्जन. अब उन्हें रियलाइज हुआ. तो फिर जब इंसान को रियलाइजेशन होती है तो क्या होता है, फिर वो नई पॉलिसी बनाता है, नई रेजोल्यूशंस बनाता है. और यही हुआ कि 1906 में 1906 में क्या होता है, मुसलमानों का एक वफद क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, क्लास को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी क्लास टीचर के पास जाती है कि सीआर जाता है? जल्दी मुझे आंसर दिया. सीआर की क्या हैसियत होती है उस वक्त? वो पूरी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं ना. सीआर का मतलब भी ये है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वफद. इसी तरह हुआ 1906 में मुसलमानों का एक वफद कंसिस्टिंग ऑफ 35 मेंबर्स. शिमला वफद के बारे में आपने पढ़ा होगा. 35 मेंबर पर मुश्तमिल 35 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक मुसलमानों का डेपुटेशन कहाँ जाता है? शिमला. शिमला वाज अ not was, it is, once Shimla was a summer capital for the British government.
वहां पर वो अपना जो समर वेकेशन है उसको गुजारने के लिए जाते थे। वहां पर लॉर्ड था, लॉर्ड का नाम था लॉर्ड मिंटो। तो a deputation of a Muslim deputation of 35 members went to Shimla to meet with Lord Minto and put their reservation in front of the Lord that my Lord, we are Muslim and we have visited from Aligarh, from Dhaka, from round every corner of the India. So we are facing many problems. The Hindus are having their political party with the name of All Indian National Congress. We are not having any political party. So we want to establish our political party. Minto, he was a very liberal, belonged to liberal party of the United Kingdom. So he replied in a very positive way and said, no problem, it's okay. To make a political party is your political right. Okay, you can you can establish your political party. तो ये क्या होता है, while having a very positive response from the Lord, what happened in the same year 1906, I told you 1906 में क्या होता है, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हो रहा था। ये 1886 में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनती है, सालाना इजलास था जब डिसाइड किया गया कि अब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी विद द नेम ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से। देन हमारे पास ये आ जाता है जी 1909। 1909 में मिंटो और मोर्ले ने कुछ रिफॉर्म्स पेश की। रिफॉर्म्स क्या थी? रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म कहते हैं पॉजिटिव चेंजेस को, कहते हैं ना पाकिस्तान को चाहिए हम अपने आप में रिफॉर्म्स लेके आए। अगर कोई शख्स गलत काम कर रहा है, हम कहते हैं यार अपने आप को रिफॉर्म करो, अपने आप को चेंज करो। चेंज से मुराद है कि पॉजिटिव तब्दीली लेके आओ। 1911 में क्या होता है? 1911 में होता है कि 1905 में क्या हुआ, पहले तो ये बताएं मुझे क्या होता है 1905 में? पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, बंगाल को तकसीम किया जाता है। तो 1911 में पार्टीशन ऑफ जो बंगाल है उस क्लेम को क्या किया, वापस ले लिया गया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश थी पार्टीशन ऑफ बंगाल पर। यस यस और नो? पार्टीशन ऑफ यस सर। नो, पार्टीशन ऑफ बंगाल पर ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस हैप्पी नहीं थी। इट अपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल। उसने कहा ये हमारी माँ की तकसीम हो गई है। वो प्रेशराइज कर रही थी, वो अपोज कर रही थी किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लिहाजा while having the pressure of all Indian National Congress and Hindu because they were in majority, the British government, what happened? The British government took its decision back and once again the Bengal became one province. बंगाल को दोबारा से एक प्रोविंस बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं annulment, cancellation of the Bengal province. 1913 में क्या होता है? 1913 में कायदे आजम जो है वो किसके मेंबर थे? ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो 1913 में वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन जाते हैं। तो 1916 में क्या होता है आपको पता है? कायदे आजम की वजह से एक पैक्ट हुआ था 1916 में, जिसे हम पैक्ट ऑफ लखनऊ कहते हैं। लखनऊ पैक्ट, यस सर। मिसाके लखनऊ। और मिस सरोजनी नायडू एक कांग्रेसी लीडर थी, उन्होंने कायदे आजम को एक लकब दिया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये जो ईयर है 1919, इसको हम रिलेट करते हैं इस ईयर के साथ 1909 के साथ। 1909 में क्या हुआ? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पेश हुई, ऐसे ही है। रिफॉर्म्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चेंजेस। 1909 में ये डिसाइड हुआ था कि हर साल बाद इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे हम। तो 1909 के बाद 1919 आ गई। उस वक्त लॉर्ड तो चेंज हो गए मगर रूल्स या पॉलिसीज तो चलती हैं। उस वक्त जो लॉर्ड थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं। तो 1919 में मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड थे, उन्होंने क्या की? रिफॉर्म्स पेश की। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 1924। 1924 में आपको पता है कि जो तहरीक खिलाफत थी वो खत्म हो गई। आपने सेकंड ईयर की इंग्लिश में मुस्तफा कमाल पढ़ा होगा, आखिरी हीरो। अपना वो क्या था? फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिचकिंग क्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्टर और लास्ट हीरो था मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल का काम ही ये था कि उसने तुर्की से खिलाफत को खत्म किया था। 1924 में तुर्की से खिलाफत खत्म होती है।
अब ये जो ईयर्स हैं, मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। फ्रॉम 1927, 28, 29, 30, 31, 32, ये बहुत है। मैं क्यों, क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चैलेंज दिया इंडियंस को कि भाई हम चाहते हैं, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी एक बच्ची ने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन कब होती है? 1914 टू 1918 तक रही। अब फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हो गई और इंडियंस ने प्रॉमिस की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इंडियंस से कि वो क्या करेंगे, इनको लिबरेट कर देंगे या आज़ादी दे देंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने चैलेंज दिया इंडियंस को कि क्या आप इस काबिल है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दें, कोई ऐसा फार्मूला दें कि दोनों के लिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। ये चैलेंज जो था, दिस चैलेंज वाज एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। तो 1927 में क्या होता है, कायदे आजम दिल्ली प्रपोजल पेश करते हैं, दिल्ली प्रपोजल को कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है, मगर उसने क्या कहा था कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1928 में नेहरू अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो मुसलमान इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। 1929 में 14 पॉइंट्स पेश होते हैं, तो ये कौन रिजेक्ट कर देते हैं, कांग्रेस या हिंदू रिजेक्ट कर देते हैं। 1930 में जो इलामा इकबाल हैं खुतवालाबाद में 14 पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो इसको कौन रिजेक्ट कर देता है, दोबारा से कांग्रेस कर देती है। 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं। मतलब कि ये कोशिशें की गई, दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, इलाहाबाद एड्रेस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। मीन हर एक के बाद जो है ना एक रिएक्शन आ रहा था, मगर ये सब क्या हो गए, ज़ाया हो गए, कैंसिल हो गए, तो कोई ऐसा सच कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली 1933 के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, नाउ और नेवर के बारे में सुना आप लोगों ने, नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं। चौधरी चौधरी नाउ और नेवर, रहमत अली। रहमत यस अली, सर। उन्होंने कहा कि अब या कभी नहीं। अब 1935 में क्या होता है, एक एक्ट इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद पेश करती है, जिसका नाम था इंडियन एक्ट ऑफ 1935। इंडियन एक्ट ऑफ 1935 जो है वो पेश किया जाता है। उसमें डिफरेंट रूल्स बताए गए और इलेक्शंस बताए गए कि जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे, कि सब लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपने पाकिस्तान स्टडीज में ये पढ़ा होगा, ये वाला ईयर 37 से 39 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में। उर्दू में हम इसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहते हैं। कांग्रेस ने अपनी वजारतें कायम की, उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है ना वो पॉलिसीज बनाई, वंदे मातरम का गीत, मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको कन्वर्ट करना, ठीक है, या गांधी के स्टैचू को जो है ना वो सलाम करना, नमस्ते, दिस एंड दैट, और विद्या मंदिर स्कीम, ये पढ़ा है आप लोगों ने? जल्दी आंसर दिया करें। यस सर। यस सर। जी, तो ये स्कीम थी, मतलब मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, और 22 दिसंबर 1939 को कायदे आजम के कहने पर मुसलमानों ने एक डे बनाया था। जो शख्स मुझे बताएगा उसको एक रेगुलर ड्रिंक। टाइम अप। 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, तो कायदे आजम के कहने पर एक डे बनाया गया था जिसे कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी योमे निजात। उर्दू में पढ़ा होगा आप लोगों ने, योमे निजात मनाया था कायदे आजम के कहने पर। और साथ ही नेक्स्ट ईयर कायदे आजम ने फिर 23 मार्च 1940 को, अभी हम सेलिब्रेट भी करेंगे, एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसे हम लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं। कांग्रेस ने, हिंदुओं ने, अंग्रेजों ने इसको जो है ना वो क्रिटिसाइज किया और कहा ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। हमें बहुत अच्छा लगा उनका ये जो टाइटल उन्होंने सजेस्ट किया, तो हम उसको लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने काफ़ी कोशिशें की हैं, 42 में, 44 में, 45 में और 46 में। 42 में आपको पता है सर स्टीफर्ड क्रिप्स आए, उन्होंने अपनी प्रपोजल के साथ आए, मगर उनकी ये जो प्रपोजल्स थी वो क्या होती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं। 1944 में दो काम होते हैं, एक था सीआर फार्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा मगर याद नहीं होगा, सीआर फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य फार्मूला। देन आ जाता है गांधी जिना टॉक्स। गांधी वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ जिना,
वो एक दूसरे से खतूत लिखते रहते थे और उनको वो ऑफर कर रहे थे कि मिस्टर जिन्ना, इफ यू वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट्स ओके, बट प्लीज डोंट वर्क फॉर द डिवीजन ऑफ आवर मदरलैंड। कायदे आजम जो है ना वो एक कमिटेड थे, उन्होंने कहा नो माय फ्रेंड, इट्स ओके, मगर हमें एक अलग मुल्क चाहिए। गांधी ने कहा क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे साथ है, मगर आपके बाद क्या होगा? हिंदू डोमिनेंट है और वो हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, हिस्ट्री ने हमें एक्सपीरियंस दिया है। 1937 टू 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्री, सिर्फ 2 साल में आपने हमारे साथ क्या किया? तो 1945 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं, वो सेपरेट इलेक्टोरेट पे होते हैं, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है, हुकूमत बनाने का उनको जो है ना वो ऑफर होती है कि अपने अपने सूबों में जाएं। एक आखिरी अटेम्प्ट जो हुई वो 1946 में हुई। बता सकते हैं क्या हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में सुना आपने? कैबिनेट मिशन, कबीना मिशन प्लान के नाम से सर स्टीफन क्रीप्स, ईवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, उन्होंने एक प्लान पेश किया जिसे हम कबीना मिशन प्लान पेश करते कहते हैं, मगर जो है वो प्लान भी जो है वो नाकाम हो गया। हालांकि मुस्लिम ने इस प्लान को मान लिया था, फिर भी ये जो प्लान था वो नाकाम हो जाता है, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। फिर ये जो 1937, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं आपके सामने, ये क्या थे? एक 37 है 3 जून। 3 जून को एक प्लान पेश होता है, जिसे कहते हैं 3 जून प्लान, जिसमें कहा गया कि इंडिया को तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है जी, पंजाब को और बंगाल को तकसीम किया जाएगा, सिंध में जो है वो वहाँ की कानून असेंबली डिसाइड करेगी, बलोचिस्तान में जिरगा डिसाइड करेगा, केपीके में तस्वा बेराए करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया 1937 में। 18 जुलाई को 18 जुलाई 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश होता है बरतानिया में, इसको जो है ना वो पास किया गया। ठीक है जी, बरतानिया ने ये जो प्लान था ये कहाँ पर गया? ये प्लान पेश किया गया। ठीक है, और फिर ये जो प्लान जब पेश किया गया तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन, दो उसके हाउस है। जो मेन लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कलेक्टिवली पार्लियामेंट ने उसको क्या किया? पास किया 18 जुलाई 1947 को, और अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट इन द ईयर ऑफ 1947 पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है जी, मुबारक हो आपको, ये पाकिस्तान बन गया है। ओके जी, क्लियर हो गया? मुबारक सर। ये एक बड़ा एक छोटा सा टॉपिक था, लाजमी नहीं आपको ये तमाम डेट्स याद हो, मगर ये हमारा जो एक फर्स्ट पार्ट था, मैंने कोशिश की है कि आपको ये बताने की कोशिश की जाए प्री पाकिस्तान पीरियड, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, लोगों को लगता है शायद ऐसे ही बस जो है ना ये बन गया। नो, आप देख सकते हैं कि इट वाज एक्चुअली द स्ट्रगल ऑफ द 90 इयर्स। ठीक है जी, एंड वी वर मूविंग टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता देखें 1857 है, वी आर मूविंग। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव करके इसे हम पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से भी याद करते हैं, और अल्टीमेटली with the blessing of Allah Almighty in the year of 1947 we got an independent land for the Muslim of the subcontinent with the name Islami Jamhuriya Pakistan। जी बेटा, कोई अब क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।